हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका सोशल साइंस विद दीपांकर में। आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसके यूजेस। मेरे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसके यूजेस, उसके क्या टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसको हमने समझा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बहुत ही यूज में आने वाला टेंस है, इसलिए हमें समझना चाहिए कि इसको किस तरह से यूज करना चाहिए, कहाँ एरर, किस तरह से एरर करने से बचे और किस तरीके से हम सही टेंस का कैसे यूज करें, किस तरह से इसके ग्रामेटिकल एस्पेक्ट क्या है, इसके टेंस के से रिलेटेड जो भी टेक्निकल और यूजेस एस्पेक्ट है उसको ध्यान से समझें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सबसे पहले मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करता हूं। अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें, एक्टिव वॉइस में इसमें इज आर एम प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होती है। पैसिव वॉइस में क्या यूज होगा? पैसिव वॉइस में हमें इज या आर या एम प्लस बीइंग एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म। तो ये तो रही टेक्निकल एस्पेक्ट की बात। इसमें हम यूजेस की बारे में बात करते हैं। तो यूजेस में सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस is used for actions which are happening at the time of speaking. Happening at the time of speaking. मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं जो एक्शन, जब हम जो चीज बोल रहे हैं, राइट, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो चीज घट रही है, फॉर एक्शंस व्हिच आर हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। Boys are playing cricket. Now they are playing now. Okay? तो बहुत ही आसान है समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, सो इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज हैपनिंग at the time of speaking. Children, just now we discussed the first use of tense, present continuous tense. What is that? That we use present continuous tense for actions which are happening at the time of speaking. जो चीज हम बोलते हुए, जिस एक्शन के बारे में हम बोल रहे हैं, that is happening at the time of speaking. जैसे अभी मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, that is going on. Okay, the action which is going on at the time of speaking. और उसका और भी यूजेस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। सेकेंड यूज हम इस पे देखेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वी यूज फॉर ए टेम्पररी एक्शन। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं फॉर ए टेम्पररी एक्शन which may not be happening or which may not be going on at the time of speaking. So in the first uses we have discussed that we use present continuous tense for actions that are happening or that are going on at the time of speaking, and we've given the examples also. And the second uses is for a temporary action we use present continuous tense which may not be going on at the time of speaking. Like suppose somebody is asking you a question, what are you doing these days? Okay, to answer that question what you would say, I am pursuing BA or I am pursuing BCom, I am doing, or which book are you reading? Suppose somebody is asking you which book are you reading or what are you doing these days, what are you busy with, then you will answer to that question, I am reading a novel these days. Okay, so I am using present continuous tense to talk about a temporary action which is not happening at the time of speaking. Okay, like I say, I am reading
Gulliver's Travels. Okay, see, I am saying here I am reading Gulliver's Travels, but it is not necessary that the action is happening at the time of speaking. ये अभी नहीं हो रहा है रीडिंग, मैं अभी आई एम नॉट रीडिंग इट नाउ. Okay, I am, though I am using present continuous tense, I am using present continuous tense, I am saying I am reading Gulliver's Travels. If I use a phrase there, these days, then the thing will be more clear to you. Okay, it means I am not reading it now. Nowadays I am reading Gulliver's Travels, I am reading a novel, or I am reading some story. Or suppose, if as I just now given an example, what are you doing these days, or what are you pursuing, you say I am pursuing MA, but you are not right now attending any class of MA, or you might be somewhere else. Okay, so it may be present continuous tense can be used for a temporary action which may not be happening at the time of speaking. तो बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के और भी यूजेस को हम समझते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अभी हमने, जैसे मैंने बात की थी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज करते हैं हैबिचुअल एक्शन के लिए. ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं जब कोई हैबिट हमारी परसिस्टेंट बन जाती है. ऐसी हैबिट जो वार्निंग के बाद भी या कई बार आपको मना करने के बाद भी आप करते रहते हैं कोई काम, तो ऐसे में भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नॉर्मली एडवर्ब्स कौन से यूज हो सकते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, continually, constantly. Like suppose you want your child to listen to you, but that child doesn't listen to you. In that case, what would you say? My child is never listening to me. So you will use present continuous tense, okay, when there is some persistent habit, when the habit has become very obstinate, right? That habit has become obstinate and it is persisting. कोई हैबिट अगर मान लीजिए ऑब्स्टिनेट हो जाती है, आसानी से जा नहीं रही है, आदत आपकी बन गई है कि आप मान लीजिए हमेशा या तो क्वेरल करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, या बहुत ज़्यादा बात करते हैं. दैट गर्ल इज ऑलवेज टॉकिंग. इफ आई से लाइक दिस, दैट मीन्स शी हैज गॉट ए वेरी ऑब्स्टिनेट हैबिट ऑफ टॉकिंग. ओके, शी हैज गॉट ए वेरी ऑब्स्टिनेट हैबिट ऑफ टॉकिंग. तो इसमें जो एडवर्ब्स, जैसे मैंने अभी बताया, कॉन्स्टेंटली, नेवर, ऑलवेज, इस तरीके के वर्ड्स के साथ जो है हम यूज कर सकते हैं. जैसे नॉर्मली तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, और अगर हम बात करते हैं फॉर ऑब्स्टिनेट हैबिट. ओके, फॉर ऑब्स्टिनेट हैबिट मतलब ऑब्स्टिनेट क्या होता है? जो एक तरह से वैसी आदत जो छूटती नहीं है आसानी से. ओके, जो आदत छूटती नहीं है आसानी से, जिद्दी आदत जिसको बोलते हैं, जिद्दी बोल सकते हैं इसको, फॉर ऑब्स्टिनेट हैबिट. ओके, फॉर ऑब्स्टिनेट हैबिट विच परसिस्ट्स. ऐसी आदत जो नहीं छूट रही है, या जिद्दी आदत जो है, वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. with adverbs like always, never, constantly. इस तरह से हम एडवर्ब के साथ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं. ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, कॉन्स्टेंटली है, कॉन्टिन्यूअली है. ओके, सो एब्स्टिनेट हैबिट के लिए, जो ऑब्स्टिनेट हैबिट है, बहुत ज़्यादा एकदम आदत जो है छूट नहीं रही है, इस तरह के हैबिट के लिए जो है विच परसिस्ट, वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, my dog is very silly. He is always
गोइंग आउट ऑफ द हाउस। ओके, इस तरह से जैसे मैंने एक सिचुएशन दिया है, माई डॉग इज वेरी सिली, ही इज ऑलवेज गोइंग आउट ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने यूज किया है परसिस्टेंट हैबिट के लिए, जो हैबिट ऑब्स्टिनेट है और जो परसिस्ट कर रही है। बच्चों, इसमें कुछ हम वर्ब्स देखते हैं, जैसे पिछले वाले मेरे वीडियो में जिसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की थी, उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज। वर्ब्स ऑफ अपेयरिंग, अपीयर, लुक, सीम। वर्ब्स ऑफ इमोशन जैसे वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, और भी हो सकते हैं। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग जैसे थिंक, सपोज, बिलीव, अग्री, कंसिडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, हैव, जैसे ओन, बिलोंग टू, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ, बी, एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड इन पैसिव। अब जितने भी ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, दे आर जनरली यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल, ये जो वर्ब्स मैंने लिखे हुए हैं, ये वर्ब्स जनरली किसके साथ यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। ठीक है, तो ऐसा कहना, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूं, द ग्रेप्स आर टेस्टिंग सावर। अब ये लिखना गलत होगा, दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, द करेक्ट वन विल बी, अगर हम करेक्ट बोलेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे इसमें, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, on account of the meaning of these verbs we normally use simple present tense. So in place of saying things like in place of saying things this way, the grapes are tasting sour, we would say the grapes taste, इसको simple present tense में लिखेंगे sour। ठीक है, I am having a car, जैसे I am having a car, ये भी गलत होगा कहना, इसकी जगह हम बोलते हैं I have a car, पोजीशन शो करने के लिए। ओके, I have a car। कुछ और एग्जांपल नोट कर लेते हैं, जैसे I am thinking something is wrong, something is wrong। तो ऐसा कहना भी गलत है, उसकी जगह हम कैसे लिखते हैं? हम कहते हैं आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। ओके, शी इज सीमिंग हैप्पी। अब यहाँ पे शी इज सीमिंग हैप्पी, ये रॉन्ग है, मैं रॉन्ग साइड यहाँ पे बता रहा हूँ। हम नॉर्मली जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, जैसे हमने वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ इमोशन, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, बहुत सारे हमने वर्ब्स यूज किए हैं। ठीक है, शी इज सीमिंग हैप्पी, तो शी सीम्स हैप्पी। हाउएवर विद अ चेंज इन मीनिंग, अगर वर्ब्स के चेंज इन मीनिंग होता है तो उस केस में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, शी इज टेस्टिंग द फूड whether it is cooked or not। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं शी इज टेस्टिंग द फूड, हम यहां पे शी टेस्ट द फूड नहीं लिख रहे हैं शी इज टेस्टिंग द फूड whether it is cooked or not। ओके, I am thinking of going to Malaysia। ये भी एक एग्जांपल है जिसमें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं। हालांकि नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट विद द चेंज इन मीनिंग ऑफ द वर्ब वी यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पे
मीनिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। तो शी इज टेस्टिंग द फूड वेदर इट इज कुक्ड और नॉट। ओके, ये पता करने के लिए फूड पका है कि नहीं पका है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज किया है। और यहाँ पे आई एम थिंकिंग मीन्स आई एम लुकिंग एट द ऑप्शन whether I should go to Malaysia. I'm thinking about it. Okay, I'm pondering about it. So I'm using present continuous tense over here. तो present continuous tense use कर रहे हैं यहाँ पे in place of simple present tense. ठीक है? Present continuous tense का एक और use हम डिस्कस करने जा रहे हैं। Present continuous tense हम use करते हैं for an action that is arranged to take place in near future. In near future. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम यूज करते हैं ऐसे किसी एक्शन के लिए जो ऑलरेडी प्लान्ड है, ठीक है, जो होने वाला है इन नियर फ्यूचर। तो ऐसे जो भी हमने देखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम यूज करते हैं फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए या प्लान्ड एक्शन को बताने के लिए, राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी हम यूज करते हैं प्लान्ड एक्शन को बताने के लिए। तो इस तरह के जो भी टेंसेस हैं जो फॉर्म वाइज तो आपका देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, काम वो फ्यूचर का कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर रेफरेंस सेंटेंसेस कहलाएंगी। ओके, इसमें जैसे एग्जांपल देते हैं, माय अंकल इज कमिंग टुमारो। तो आप देख सकते हैं माय अंकल इज कमिंग टुमारो। तो टुमारो से हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर, ठीक है, कल आने वाला है। तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर रहे हैं फ्यूचर की बात बताने के लिए, ठीक है। जो प्लान एक्शन है उसके लिए हम यूज करते हैं। अब आई एम गोइंग टू फॉर्म भी यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू रीच द स्टेशन, ठीक है। इस तरह से हम एग्जांपल देख सकते हैं। ये फ्यूचर रेफरेंस सेंटेंसेस कहलाती हैं क्योंकि हम टेंस कौन से यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और बात किसकी कर रहे हैं, फ्यूचर एक्शन की, ठीक है। दिस इज इट फ्रॉम मी नाउ। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट, एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज keep watching the videos and keep waiting for the new and more interesting videos. Okay, in the end I would say take a very good care of yourself. Thank you and have a nice time. Bye.